Hello students, today we will be starting chapter 13, that is photosynthesis in higher plants. Dear students, previously we have done the chapter respiration in plants. What is respiration? Respiration is a catabolic process in which the glucose, it oxidizes to carbon dioxide, water and energy, and this energy it is stored in the form of ATP. Now students, what is photosynthesis? Photosynthesis is just the opposite of respiration. Photosynthesis is an anabolic process in which the carbon dioxide it combines with water in the presence of light energy to form what? To form glucose molecule. So respiration एक catabolic process है, इसमें glucose की breakdown हो रही है into carbon dioxide and water, whereas photosynthesis एक anabolic process है जिसमें carbon dioxide water के साथ जुड़ के क्या बना रहा है? Glucose बना रहा है. So students, today we will be starting chapter 13 and our today's topic is history of photosynthesis. We will study what were the various experiments which were performed by different scientists to discover the various aspects of photosynthesis. We will also study a bit on the site of photosynthesis, that is the structure of chloroplast, and what are the various photosynthetic pigments and what are their functions. Now students, what is photosynthesis? Photosynthesis is a physiochemical process by which the green plants they use light energy to synthesize the organic compounds. Because जो ultimate source है energy का students, that is the sun. It is the light energy of the sun which is converted into chemical energy, and this chemical energy that is stored in the food. You students, you all must be familiar with the laws of thermodynamics. What does the first law of thermodynamics states? It states that energy can neither be created nor be destroyed, but it can only be transformed from one form to another. So energy को ना तो create किया जा सकता है, ना ही इसे destroy किया जा सकता है, हाँ इसे एक form से दूसरे form में convert किया जा सकता है. सो फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है, बट ये केमिकल एनर्जी एक्चुअली क्रिएट नहीं हुई है. लाइट एनर्जी जो है ऑफ सन दैट इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, एंड दिस केमिकल एनर्जी इट इज प्रेजेंट इन द फूड. और स्टूडेंट्स, ये जो पावर है फोटोसिंथेसिस की, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ प्लांट्स. And we animals, we are dependent on plants for the food materials. So we can say that ultimately all living forms, जितने भी लिविंग फॉर्म्स प्रेजेंट हैं इन दिस वर्ल्ड, दे आर टोटली और दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट फॉर द एनर्जी. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? पहली इंपॉर्टेंस जो है वो ये है कि इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड मटीरियल्स ऑन द अर्थ. फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो फूड मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड दे गिव ऑफ ऑक्सीजन. सो by the process of photosynthesis, the plants they are releasing oxygen into the atmosphere, and this oxygen it is the basis of life of all the organisms who are respiring aerobically. So this is the importance of photosynthesis. Now students, we will do what were the various experiments related with the photosynthesis. सबसे पहला experiment है students variegated leaf experiment. पहला तो मतलब व्हाट इज मीन्ड बाय वेरीगेटेड? वेरीगेटेड का मतलब होता है डिफरेंटली कलर्ड लीव, जिसपे कुछ ग्रीन कलर है, कुछ येलो पैचेस हैं, कुछ नॉन ग्रीन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरीगेटेड लीफ. तो हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए वेरीगेटेड लीफ चाहिए. इफ़ वी डोंट हैव अ वेरीगेटेड लीफ तो हमने पार्शली लीफ को कवर कर देना, एक नॉर्मल लीफ लेनी है और उसे पार्शली कवर कर देना है विद ब्लैक पेपर, बिकॉज ताकि वो पार्ट लीफ का जिसको हमने ब्लैक पेपर से कवर किया हुआ है दैट इज नॉट एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो स्टूडेंट्स, होगा क्या कि जो पार्ट कलर्ड है, ग्रीन कलर्ड है, वो पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, वहाँ पे ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग होगी, और अल्टीमेटली प्लांट किस फॉर्म में अपना फूड स्टोर कर रहे हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं. इट मीन्स जो ग्रीन पार्ट है लीफ का, वहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन होगी. और अगर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, आयोडीन एक टेस्ट है फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो हम देखेंगे कि जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे इस लीफ के ऊपर, तो जो ग्रीन पार्ट है लीफ का स्टूडेंट्स वो कलर्ड हो जाएगा
ब्लू या ब्लैक इन कलर। और जो दूसरा पार्ट है जिसको हमने कवर करके रखा था ब्लैक पेपर से या वेरीगेटेड लीफ में, वो वाला पार्ट जो कि येलो था, इट विल नॉट शो एनी कलर विद द आयोडीन सोल्यूशन। इसका मतलब ये जो पार्ट है, येलो पार्ट है, इसने फूड सिंथेसाइज नहीं किया, यहाँ पे स्टार्च एब्सेंट है। जो ग्रीन पार्ट है वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, वहाँ पे आयोडीन टेस्ट भी हुआ। तो इससे क्या पता लगता है दैट फोटोसिंथेसिस अक्कर ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो ग्रीन पार्ट है लीफ का, दैट इज रिक्वायर्ड। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज नोन एज वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जो हमें ये बताता है कि ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सेकेंड है स्टूडेंट्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अ पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग KOH सोल्यूशन। हमने लीफ का हाफ पार्ट जो है उसे एनक्लोज करना है इन अ बीकर विच कंटेन KOH सोल्यूशन। ठीक है, सो हाफ पार्ट हमने लीफ का एक्सपोज किया है देखो, और हाफ पार्ट जो है हमने लीफ का कहाँ पे रख दिया, KOH सोल्यूशन के अंदर रखा है। ये KOH जो सोल्यूशन है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। सो हमने इस सेटअप को थोड़े टाइम के लिए रखना है। एंड नाउ टेस्ट द लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो हम देखेंगे कि हमारा वो पार्ट जो लीफ का जिसको हमने एक्सपोज रखा था, जिसको हमने KOH सोल्यूशन के अंदर नहीं डाला, वो पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा फॉर दी स्टार्च, और जिस पार्ट को हमने इमर्स किया है इन KOH वो नेगेटिव टेस्ट शो करेगा फॉर दी स्टार्च। बिकॉज जिस पार्ट को हमने डिप किया है स्टूडेंट्स, उस पार्ट की फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। बिकॉज जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इस बीकर के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड किसने एब्जॉर्ब कर लिया, KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस पार्ट को नहीं मिल रही, इट मीन्स ये पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये स्टार्च टेस्ट शो नहीं करेगा। सो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स बाय जोसेफ प्रिस्ले। Priestley performed experiments to prove the role of air in the growth of green plants, कि air की कितनी ज़्यादा importance है for the growth of the green plants। Priestley ने discovered भी किया ऑक्सीजन in the year 1774। उसने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स प्रिस्ले ने, दैट अ कैंडल burning in an closed bell jar it gets extinguished। Similarly a mouse सफोकेटेड इन अ क्लोज जार। ठीक है, बेल जार, क्लोज्ड बेल जार में अगर कैंडल को रखा जाए, बर्निंग कैंडल को रखा जाए, इट विल गेट एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम। और अगर हमने माइस को भी एनक्लोज्ड बेल जार में रखा हुआ है, क्लोज्ड बेल जार में रखा हुआ है, तो नेचुरली इट विल ऑल्सो डाई ड्यू टू दी सफोकेशन। तो इससे प्रिस्ले ने क्या कंक्लूड किया, प्रिस्ले ने ये कंक्लूड किया स्टूडेंट्स दैट अ बर्निंग कैंडल और अ ब्रीदिंग एनिमल उसने डैमेज कर दिया एयर को। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज रिलीज हुई है ब्रीदिंग से या बर्निंग ऑफ कैंडल से, जो कि क्या कर रही है, एयर को डैमेज कर रही है। और एयर डैमेज हो गई तो कैंडल भी क्या हो गई, एक्सटिंग्विश हो गई, और माइस की भी क्या हो गई, डेथ हो गई। सो व्हाट ही डन आफ्टर सम टाइम, अब उसने क्या रखा स्टूडेंट्स, उसने क्लोज्ड जो बेल जार था उसमें एक मिंट प्लांट रख दिया। ठीक है, इन द बेल जार ही फाउंड दैट नाउ द माइस इट स्टेड अलाइव and the candle continued to burn। तो ही hypothesized कि प्लांट्स ने रीस्टोर कर दिया टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव, कि जो चीज़ ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग से या बर्निंग कैंडल से जो है वो निकल रही है, वो प्लांट्स ने क्या कर दी, रीस्टोर कर दी। क्या स्टूडेंट्स आप इसे थोड़ा सा आप सोच के, दिमाग सोच के लगा सकते हो भी एक्चुअली हुआ क्या, कि जब पहली बारी बर्निंग कैंडल को एनक्लोज्ड जार में रखा गया तो वो क्यों एक्सटिंग्विश हो गई, बिकॉज इट वॉज नॉट गेटिंग प्रॉपर ऑक्सीजन फॉर इट्स बर्निंग। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो माइस है उसकी भी डेथ इसलिए हो गई बिकॉज इट वॉज नॉट गेटिंग ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। बट जब हमने मिंट प्लांट को बीच में रखा तो नाउ मिंट प्लांट इट इज परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज क्यों,
अब तुम कहोगे मैडम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? ब्रीदिंग से आ रही है। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन जो है वो इनटेक हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। बर्निंग ऑफ कैंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिंट प्लांट ने एब्जॉर्ब की, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस की, और ये ऑक्सीजन जो है ये यूज्ड हुई बाय द माउस फॉर इट्स ब्रीदिंग एंड फॉर burning the candles. So इस तरीके से candle it keep on burning and the mice survived in the closed jar in which the mint plant that was placed. So this was the experiments which were performed by the Joseph Priestley. Students, next experiment है by Jan Ingenhouse. Jan Ingenhouse ने conduct किया same experiment by placing it once in the dark and once in the sunlight. And he showed what? That sunlight जो है that is also essential for the plants to purifying the air. कि plants देखो जब photosynthesis कर रहे हैं तो ultimately वो carbon dioxide gas ले रहे हैं and they are giving off oxygen. But this process, it is taking place in the presence of light energy or in the presence of sunlight. So he repeated this experiment with an aquatic plant also, and it showed that कि bright sunlight, in bright sunlight small bubbles they are formed, छोटे छोटे bubbles formed हो रही हैं around the green plant, while in the dark they did not. तो ये जो छोटे छोटे bubbles formed हुए हैं स्टूडेंट्स, ये किसके हैं? ये ऑक्सीजन गैस के हैं जो फोटोसिंथेसिस के बाद लिबरेट हो रही है. So later he identified these bubbles that is of oxygen, and thus he showed that only the green part of the plants they release oxygens. So Jan Ingenhouse ने ये प्रूव किया स्टूडेंट्स कि ग्रीन पार्ट जो है प्लांट का वही रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Now next experiments by Julius von Sachs. What he proved, Julius von Sachs, he proved that glucose is produced when plants grow and it is stored in the form of starch. ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब हो रही है तो क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट इज फॉर्मिंग व्हाट? इट इज फॉर्मिंग C6H12O6. दिस इज ग्लूकोज. और जो स्टोर्ड फॉर्म है फूड का फॉर्म जो है स्टूडेंट्स इन दी प्लांट्स, दैट इज एक्चुअली स्टार्च. स्टार्च क्या है? इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. सो ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है व्हेन प्लांट्स दे ग्रो, और वो स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है. क्लोरोफिल जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे? इट इज लोकेटेड विद इन द क्लोरोप्लास्ट, एंड ग्लूकोज इट इज मेड इन द ग्रीन प्लांट्स ऑफ द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. सो जूलियस वॉन सैक्स ने ये बताया कि जब प्लांट फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं देन glucose that is produced. Next, experiments by T.W. Engelmann. ठीक है, Engelmann he performed experiments in the year 1843 to 1909. क्या किया स्टूडेंट्स इंजलमैन ने सबसे पहले तो लाइट को स्प्लिट किया यूजिंग अ प्रिज्म इनटू इट्स वेरियस कंपोनेंट्स. कौन से कंपोनेंट्स हैं? विबग्योर, VIBGYOR. ठीक है, पहले तो उसने प्रिज्म से लाइट को स्प्लिट कर दिया इनटू इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स. अब उसने क्या किया? इल्यूमिनेट किया, इस लाइट को फॉल करवाया ऑन एन एल्गी क्लेडोफोरा, जिसे रखा गया था इन अ सस्पेंशन विद एरोबिक बैक्टीरिया. उसने एरोबिक बैक्टीरिया स्टूडेंट्स अपने एक्सपेरिमेंट में क्लेडोफोरा के साथ, इस एल्गी के साथ क्यों रखे? ताकि वो डिटेक्ट कर सके दी साइट्स कहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा इवॉल्व हो रही है. बिकॉज ये एरोबिक बैक्टीरिया नेचुरली वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही होगी. So he observed that bacteria accumulated mainly in the region of, very important students, blue and red light of the split spectrum. कि बैक्टीरिया की एक्यूमुलेशन देखो कहाँ पे ज़्यादा हुई है? ब्लू लाइट पे ज़्यादा हुई है. ये देखो, ये कर्व जो दिखाया गया है ये दिखाए गए हैं बैक्टीरियाज. रेड लाइट पे ज़्यादा हुई है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ज़्यादा इवॉल्व हो रही है.
और ऑक्सीजन गैस की इवोल्यूशन हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है. इट मीन स्टूडेंट्स कि ब्लू और रेड लाइट जो है दैट इज मोर इफेक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वेरी इंपॉर्टेंट कि टोटल 7 लाइट्स हैं, बट इन 7 लाइट्स में से जो ब्लू लाइट है और रेड लाइट है दैट इज मोर इफेक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो it was the first described action spectrum. हम स्टूडेंट्स एक्शन स्पेक्ट्रम भी करेंगे. एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई है. तो एक्चुअली देखा जाए तो एंजलमैन ने सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब किया एंड इट रिजेंबल्स द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी ऑल्सो. स्टूडेंट्स, वी विल डू व्हाट इज दिस एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. सो एंजलमैन ने जो है स्टूडेंट्स ये बताया कि टोटल जितनी भी विबग्योर है, विबग्योर में से जो ब्लू लाइट है और रेड लाइट है दैट इज मोर इफेक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Next experiments, by the middle of 19th century, it was discovered that plants, they use light energy to make carbohydrates from carbon dioxide and water. और empirical equation जो है photosynthesis की दी गई क्या है? Carbon dioxide plus water in the presence of light energy to form what? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जहाँ पे ये स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को. तो अगर हम इसको यहाँ पे 6 कर दें, देखो CH2O इसको होल 6 कर दें तो ये किसका फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स? ग्लूकोज का फॉर्मूला आ गया. ठीक है, सो ये जो है दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स बाय कॉर्नियस वैन नील. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स. वैन नील, ही वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ही कंडक्टेड सम स्टडीज ऑन सम बैक्टीरियाज, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया. ही डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. ये एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates. कि देर इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, कोई एक चीज़ है जो कि एक सोर्स है हाइड्रोजन का, और वो हाइड्रोजन उस सोर्स से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के क्या बना रही है? कार्बोहाइड्रेट बना रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सोर्स है हाइड्रोजन का, क्या बताओगे ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो क्या है? इट इज एक्चुअली वाटर. ठीक है, सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस इक्वेशन ऑल्सो. सो पहले तो ये डिस्कवर नहीं किया था वैन नील ने, बट उसने जस्ट ये बताया था कि देयर इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस सोर्स ऑफ हाइड्रोजन उसने इस तरीके से इक्वेशन के थ्रू इसे डिपिक्ट किया दैट H2A प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी इट फॉर्म्स व्हाट? 2A मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा. ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा टू फॉर्म व्हाट? ग्लूकोज. और ये जो A है इट विल बी लिबरेट आउट. सो एक्सपेरिमेंट्स बाय वैन नील इन प्लांट्स, उसने ये बताया कि अगर हम प्लांट्स में अब देखें स्टूडेंट्स तो हाइड्रोजन डोनर क्या है? हाइड्रोजन डोनर इज द वाटर. बट एक्चुअली वैन नील अपना एक्सपेरिमेंट प्लांट्स पे तो कर नहीं रहा था. ही वॉज परफॉर्मिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. और ये पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पानी की जगह क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? H2S गैस यूज़ करते हैं. तो ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं लिबरेट कर रहे थे, ये बैक्टीरिया क्या लिबरेट कर रहे थे स्टूडेंट्स? सल्फर लिबरेट कर रहे थे. दे वर गिविंग ऑफ सल्फर. सो थर्स ही इन्फर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. ही इन्फर्ड बिकॉज पहले साइंटिस्ट ये सोचा करते थे कि ये जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. बट वैन नील ने अपने एक्सपेरिमेंट से इस चीज को कंफर्म किया कि ये जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स. सो देयरफॉर
he inferred that oxygen evolved by green plants, it comes from water, not from carbon dioxide, and this was later proved by रूबन और केमन ने भी स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए पानी के, और इस तरीके से रूबन और केमन ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि ये जो मॉलिक्यूलर गैस इवॉल्व होती है इन फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम व्हाट? That is actually coming from water. Now students, what is the site of photosynthesis? We all know students that the site of photosynthesis is the chloroplast. So photosynthesis is taking place in the green leaves and other green parts of the plants. Chloroplast they represent in the walls of the mesophyll cells. ठीक है, so chloroplast जो है वो mesophyll cells के अंदर present है, and it helps to get optimum quantity of the incident light. और हमें chloroplast की student structure भी पता है कि ये double membrane organelles हैं, और इनमें कुछ flattened sacs present होते हैं, और इन flattened sacs के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? ग्राना कहते हैं. ठीक है, और ये सारे के सारे ग्राना जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं बाय व्हाट? बाय स्ट्रोमा लेमिली, और बीच में ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है दिस इज नोन एज फ्लूइड स्ट्रोमा. अब स्टूडेंट ये जो ग्राना है, जो फ्लैटेंड सैक्स हैं विच आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, तो एक फ्लैटेंड सैक को हम क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड. ठीक है, ऐसे दिस इज वन थाइलेकॉइड. तो इस तरीके से बहुत सारे फ्लैटेंड सैक्स जो हैं दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर. तो इसको इकट्ठा क्या कह देते हैं? ग्रैनम कह देते हैं, और एक को क्या कहेंगे? थैलेकॉइड कहेंगे. तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनालीज हैं, उनमें कई फ्लैटेंड सैक्स प्रेजेंट हैं जिनको हम थाइलेकॉइड्स कहते हैं. ये थाइलेकॉइड्स जो हैं वो ग्रुप्स में प्लेस्ड होते हैं विच आर नोन एज ग्राना. जितने भी ग्राना हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लेमिली. नाउ स्टूडेंट्स जो फोटोसिंथेसिस है हम आगे करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में ना दो टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस में दो टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं. वन इज द लाइट रिएक्शन, अदर इज द डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, और इस टाइम क्या बनता है? इस टाइम एटीपी और NADPH, तो ये रिड्यूसिंग पावर्स हैं, पावर सिंथेसाइज हो रही हैं, या हम कहेंगे एजिमिलेटरी पावर्स बनती हैं लाइट रिएक्शन में. सो लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है. इस टाइम ATP और NADPH2 पावर्स जो हैं वो सिंथेसाइज होती हैं, और जो डार्क रिएक्शन है उसमें ये पावर्स यूज होंगी टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज नोन एज डार्क रिएक्शन. सो लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है. इस टाइम एजिमिलेटरी पावर सिंथेसाइज होती हैं लाइक ATP एंड NADPH2, और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा टू ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ दीज एजिमिलेटरी पावर्स. नाउ स्टूडेंट्स ये हमने क्लोरोप्लास्ट की देखो स्ट्रक्चर की है. ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, ये जो ग्राना पार्ट है और ये जो स्ट्रोमल लेमिली वाला पार्ट है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं? यहाँ पे लाइट रिएक्शंस दे आर टेकिंग प्लेस. और ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है जिसको हम फ्लूइड स्ट्रोमा भी कहते हैं, यहाँ पे या स्ट्रोमल पार्ट में क्या हो रहा है? डार्क रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लाइट रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन दी grana part and in the stromal lamella, whereas the dark reaction that is taking place in the fluid stroma part. So there are two types of reaction, students. We will study both the types of reaction in detail in our next lectures. Now, what are the various pigments which are involved in the process of photosynthesis? So pigments क्या है? Pigment substances हैं which have the ability to absorb light at specific wavelengths. और chromatography एक टेक्निक है जिसके थ्रू हमें प्लांट के वेरियस पिगमेंट्स के बारे में पता चलता है. ठीक है. सो वेरियस टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स. क्लोरोफिल ए ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर का है. क्लोरोफिल बी जो है दैट इज येलो ग्रीन इन कलर. जेंथोफिल्स हैं विच आर येलो इन कलर, एंड कैरोटिनॉइड्स हैं विच आर येलो टू येलो ऑरेंज इन कलर. नाउ स्टूडेंट्स इन सभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में से जो क्लोरोफिल ए है
ये वाला क्लोरोफिल ए, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स. क्लियर स्टूडेंट्स? सो क्लोरोफिल ए दैट इज नोन एज व्हाट? यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्लोरोफिल ए जो है उसको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं. पहले हमने उसको क्या कहा? यूनिवर्सल. यूनिवर्सल क्यों? बिकॉज वो सब में प्रेजेंट है. और दूसरा है कि ये प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मतलब कि ये प्राइमरी रिएक्शन करवा रहा है. प्राइमरी रिएक्शन मतलब ये क्लोरोफिल ए जो है यही लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है? सो क्लोरोफिल ए इज कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, and this chemical energy that is stored in the food molecule. So chlorophyll A, it is known as primary photosynthetic pigment. Now students, what are the functions of other pigments? जैसे chlorophyll B है, xanthophylls हैं, carotenoids हैं, इनको हम accessory pigments कहते हैं. ठीक है? कुछ extra photosynthetic pigments हैं. And what are the functions of these accessory pigments? They absorb light at different wavelengths of light and transfer the energy to chlorophyll A. तो ये क्या करते हैं? देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ब्रॉड कर रहे हैं. ये अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और किसको हैंड ओवर कर रहे हैं? क्लोरोफिल ए को हैंड ओवर कर रहे हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स एसेसरी पिगमेंट्स का? कि ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. बिकॉज जब फोटो ऑक्सीडेशन होती है, जब पानी की लाइट की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होती है स्टूडेंट, तो उस टाइम ये नेसेंट ऑक्सीजन बनता है. ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है. ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को बर्न कर सकता है. तो कैरोटिनॉइड्स क्या करते हैं या ये एसेसरी पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं? इस नेसेंट ऑक्सीजन जो कि हार्मफुल है, इसको हार्मलेस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं. तो इस तरीके से ये हमारे जो पिगमेंट्स हैं उन्हें फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर देखो दिखाई गई है. क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर दिखाई गई है. तो क्लोरोफिल ए जो है उसमें देखो हेड है, दिस इज द हेड एंड दिस इज द लॉन्ग फाइटोल टेल. हेड में अगर हम देखें तो 4 पायरोल रिंग्स हैं. 1 2 3 4 पायरोल रिंग्स हैं जो कि मिथीन ब्रिजेस से आपस में अटैच्ड हैं. और अगर सेंटर में स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो हेड है इसके सेंटर में प्रेजेंट है मैग्नीशियम आयन. और ये मैग्नीशियम आयन चारों की चारों पायरोल रिंग्स के साथ अटैच्ड है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. नेक्स्ट स्टूडेंट, सो ये देखो स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं स्टूडेंट्स. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स हैं. अब देखो स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल ए और बी की स्ट्रक्चरल कई बार डिफरेंस आ जाती है. तो हम देखो स्ट्रक्चरल अगर डिफरेंस करें तो दूसरी पायरोल रिंग्स पे जो पहला कार्बन है वहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप. ठीक है? फॉर्माइल ग्रुप CHO ग्रुप जो है दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप जो है दैट इज अटैच्ड. तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है. बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सारी की सारी सिमिलर है क्लोरोफिल ए और बी की. सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पे सेकेंड पायरोल रिंग पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे सेकेंड पायरोल रिंग पे एल्डिहाइड ग्रुप दैट इज अटैच्ड. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने बताया था व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज एक्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स ये क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटिनॉइड्स के बताए हैं. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. ठीक है? कितनी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एक पर्टिकुलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स. तो अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें तीनों का, तो हमें क्या पता लग रहा है कि मैक्सिमम लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो या तो ब्लू लाइट है या फिर वो
रेड लाइट है. सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द 3 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताते हैं दैट फोटोसिंथेसिस दैट इज मैक्सिमम एट ब्लू एट रेड रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. ठीक है. और इससे हमें यह भी पता लगता है कि जो क्लोरोफिल ए है दैट इज द चीफ पिगमेंट विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये एक्शन स्पेक्ट्रम है. एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैसे मेजर कर सकते हैं? हम उसको मेजर कर सकते हैं कि कितनी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है. ठीक है. तो जब हम देखते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम है एट ब्लू लाइट एंड एट रेड लाइट, बिकॉज इस वेवलेंथ पे ज़्यादा मॉलिकुलर ऑक्सीजन गैस जो है दैट इज इवॉल्विंग. सो एक्शन स्पेक्ट्रम वो ग्राफ है जो कि ये शो करता है व्हाट इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. और अगर हम स्टूडेंट्स दोनों ग्राफ को एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर एक्चुअली ओवरलैप कर जाते हैं. इससे क्या पता लगता है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो मैक्सिमम ब्लू और रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये ब्लू और रेड लाइट जो है दैट इज मोर इफेक्टिव फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. So student, this is the action spectrum and absorption spectrum. Now students, अगर देखा जाए कि टोटल जितनी भी लाइट एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम द सन, ओनली 45% ऑफ द लाइट एनर्जी दैट इज रीचिंग द अर्थ, और इस टोटल लाइट एनर्जी का भी 1 to 3%, only this much percent that is effective for the process of photosynthesis. मतलब टोटल जितनी लाइट एनर्जी है उसका केवल 1 to 3% जो है वो इफेक्टिव है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड दिस इज नोन एज पार. पार की फुल फॉर्म क्या है? फोटोसिंथेटिकली, P फॉर फोटोसिंथेटिकली, A फॉर एक्टिव, R फॉर रेडिएशन. सो टोटल लाइट एनर्जी जितनी भी आ रही है उसका केवल 1 से लेके 3% ही इफेक्टिव है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड दिस इज नोन एज पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. इन टुडेज टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द वेरियस experiments of photosynthesis. We have done the structure of chloroplast. We have done the structure of photosynthetic pigments, accessory pigments, their functions, and about action and absorption spectrum. I hope students the topic is very well clear to you. So thank you to all.